کراچی سے خیبر تک کے حوال میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ لیا میں اسکول وین اور ٹرک میں خوفناک تصادم کے نتیجے میں 7 بچوں سمیت 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں 11 بچے زخمی بھی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے انتظامیہ سے حادثے کی رپورٹ طلب کر لی۔ سیالکوٹ کے تھانہ ہیڈ مرالہ کے گاؤں میانی پٹھانہ میں مکان کی چھت گرنے سے چوتھی جماعت کی طالبات جاں بحق، جبکہ اس کے والد اور 3 بھائی زخمی ہو گئے۔ ڈسکا میں پولیس کی نااہلی کے باعث ڈاکو راج قائم ہو چکا ہے۔ 2 نامعلوم پیدل مسلح ڈاکو دوران ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان کو گولی مار کر نئی موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔ فیصل آباد میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گاڑی سے بڑی تعداد میں پتنگیں اور ڈوریں برآمد کر لی۔ 2 افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ملتان کے چلڈرن اسپتال میں حالات جوں کے توں، ڈاکٹرز اور عملے کی ہڑتال کے باعث بچوں کا علاج معالجہ بند ہے۔ لواحقین سراپا احتجاج۔ جھنگ کے محلہ غازی آباد میں لگایا گیا واحد واٹر فلٹریشن پلانٹ، کئی ماہ سے خراب ہونے کے باعث علاقہ مکین پریشانی کا شکار ہیں۔ سرگودا میں وابڈا کا انوکھا کارنامہ سامنے آ گیا۔ محنت کش کے گھر میں زبردستی بجلی کا ٹرانسفارمر لگا دیا گیا۔ غریب خاندان خوف کے سائے میں رہنے پر مجبور۔ سکھر میں گزشتہ روز ہونے والے تصادم میں گرفتار 14 افراد کو عدالت میں پیش کیا گیا، جنہیں 10 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ جیکب آباد میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں کی جانب سے بھتہ خوری اور زیادتیوں کے خلاف ٹرانسپورٹرز نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ دکی میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے قتل، اقدام قتل اور دیگر سنگین وارداتوں میں مطلوب 8 ملزم گرفتار کر لیے، جبکہ ان کے قبضے سے اسلحہ اور مال مسروقہ بھی برآمد کر لیا۔ اور جعفر آباد میں آل پارٹیز اتحاد کا جعفر آباد اور ڈیرہ الیار میں صفائی اور سیوریج سسٹم سمیت دیگر مسائل کے بارے میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، سب سے پہلے رخ کریں گے صوبہ پنجاب کا۔ بھی ہوئے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے انتظامیہ سے حادثے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ افسوسناک حادثہ فتح پور کے علاقے میں پیش آیا، جہاں شدید دھند کے باعث اسکول وین سامنے آنے والے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ حادثہ اتنا خوفناک تھا کہ اسکول وین تباہ ہو گئی۔ حادثے میں کئی بچے موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ فوری طور پر امدادی کارروائیوں کا آغاز کیا گیا، جبکہ سڑک پر موجود لوگوں نے بھی ریسکیو اہلکاروں کی مدد کی۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں کئی بچوں کی حالت اب بھی تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جاں بحق ہونے والے بچوں کے لواحقین سے ہمدردی اور اظہار تعزیت کیا۔ شہباز شریف نے زخمی بچوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی، جبکہ وزیر اعلیٰ نے حادثے کی رپورٹ انتظامیہ سے طلب کر لی ہے۔ ادھر شیخوپورہ میں تیز رفتار مسافر بس الٹنے سے 3 خواتین جاں بحق، جبکہ 20 سے زائد مسافر زخمی ہو گئے۔ لاہور سے فیصل آباد جانے والی مسافر بس تیز رفتاری کے باعث فیروز وٹواں کے قریب الٹ گئی۔ حادثے میں 3 خواتین جاں بحق، جبکہ 20 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں مرد و خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے، جہاں 10 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ زخمیوں کے مطابق ڈرائیور ریس لگا رہا تھا، تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو کر بس الٹ گئی۔ زخمیوں میں بس کا ڈرائیور بھی شامل ہے۔
सियालकोट के थाना हेडमराला के गांव मियां पठाना में मकान की छत गिरने से चौथी जमात की तालिबा जाँ भाग, जबकि उसके वालिद और 3 भाई जख्मी हो गए। वाकया अलस्सू पेश आया। पुलिस के मुताबिक सर्जिकल मेकर तारिक खान के मकान की बोसीदा छत गिर गई, जिसके मलबे तले दबकर तारिक खान, उसके 3 बेटे गनी मोहम्मद, शहजाद महमूद और 12 साला बेटी सहर तारिक जख्मी हो गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि चौथी जमात की तालिबा सहर तारिक जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई, जबकि दीगर जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। डस्का में पुलिस की नाअहली के बायस डाकू राज कायम हो चुका है। 2 नामालूम पैदल मुसल्ला डाकू दौरान डकैती मज़ाहमत पर नौजवान को गोली मारकर नई मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। डस्का थाना सिटी के इलाका सोबाओ स्टॉप के करीब गली माई जट्टी का रिहायशी नौजवान अली रजा अपनी मोटरसाइकिल पर सवार घर में दाखिल हो रहा था कि 2 नामालूम पैदल मुसल्ला डाकुओं ने असलहे के जोर पर मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। अली रजा ने मज़ाहमत की, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग करके उसे शदीद जख्मी कर दिया और मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अभी आपको खबर देंगे ओकाड़ा से। ओकाड़ा और ननकाना पुल के दरमियान सैयदवाला पुल पर कश्ती उलट गई है। कश्ती में सवार 10 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि बाकी अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। कश्ती में खवातीन और बच्चों में समेत 70 से ज्यादा अफराद सवार थे, ये भी बताया जा रहा है। अफसोसनाक खबर सानिया पेश आया है। ओकाड़ा में ननकाना पुल के दरमियान सैयदवाला पुल पर कश्ती उलट गई है। कश्ती में सवार 10 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि बाकी अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। आपको ये भी बताएं कि कश्ती में खवातीन और बच्चों समेत 70 से ज्यादा अफराद सवार थे। फैसलाबाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी से बड़ी तादाद में पतंगे और डोरे बरामद कर ली। 2 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फैसलाबाद के इलाके मंसूराबाद में नाके पर पुलिस एहलकारों ने एक गाड़ी को रोका। दौरान तलाशी गाड़ी से पतंगे और केमिकल डोरे बरामद कर ली गई और कार में मौजूद 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक डोरे और पतंगे लाहौर मुंतकिल की जा रही थी, ताहम गिरफ्तार अफराद की जानिब से किसी भी किस्म का बयान सामने नहीं आया। पुलिस के मुताबिक शहर में पतंगबाजी की शिकायत के बाद मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया गया है। किसी भी इलाके में फिलहाल पतंगबाजी की इजाजत नहीं है। खबर आपको देंगे बहावलपुर से, जहां इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ऑफिसर ट्रांसपोर्ट के 19वें स्केल पर भर्ती होने वाले शख्स का सर्टिफिकेट जाली साबित हो गया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक मुलाजमत के हुसूल के लिए जाली सर्टिफिकेट बनाए गए, जिसकी तहकीकात भी जारी है। इसी बारे में मजीद अपडेट्स देंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज चौधरी अशरफ से। चौधरी अशरफ, बताइएगा क्या वो हमला है ये? जी बिल्कुल, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में 19वें ग्रेड की भर्ती पर मेगा करप्शन केस सामने आ गया है। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की इंतजामिया ने भारी रिश्वत वसूल करके वाइस चांसलर के बाद सबसे बड़े ओहदे पर प्रिंसिपल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर वकास अहमद अमीन नामी शख्स को जाली सर्टिफिकेट कर भर्ती कर लिया। वकास नामी शख्स ने 2008 से 2010 तक बीटेक की डिग्री कराची से हासिल की और 2010 से 2012 तक बीटेक ऑनर की डिग्री से हासिल की, जबकि भर्ती के लिए तजर्बे की लाजमी शर्त को पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया के साथ मिली भगत करके डेवो बस सर्विस का जाली तजर्बाती सर्टिफिकेट। अपडेट्स के लिए शुक्रिया। गुजरावाला में विफाकी वजीर के सरकारी अस्पताल के दौरे पर इंतजामिया ने सब अच्छा दिखाने के लिए नौमालूम बच्चों और उनके लवाहिकीन को सख्त सर्दी में वार्ड से बाहर निकाल दिया। अवाम सरापा एहतजाज बन गए। विफाकी वजीर तिजारत खुर्रम दस्तगीर खान मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचे, जहां पर इंतजामिया ने विफाकी वजीर को सब अच्छा दिखाने के लिए बच्चा वार्ड, गायनी वार्ड समेत दीगर वार्ड्स में बेड्स पर एक मरीज को लिटाकर बाकी मरीजों और उनके तीमारदारों को वार्ड से बाहर निकाल दिया, जिनमें नौमौलूद बच्चे भी शामिल थे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इंतजामिया के रवैये के खिलाफ मरीजों और उनके लवाहिकीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया।
और मुल्तान की बात करेंगे, जहां के चिल्ड्रन अस्पताल में हालात जूं के तू हैं। डॉक्टर्स और अमले की हड़ताल के बायस बच्चों का इलाज मुआवजा बंद है, जिस पर लवाहिकीन सरापा एहतजाज हैं। मजीद इस बारे में जानते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज एजाज तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, अपडेट कीजिएगा। जी, चिल्ड्रन इंतजामिया के खिलाफ आज भी शहरी सरापा एहतजाज है। गुज़श्ता 3 रोज से इनके बच्चों का इलाज नहीं हो रहा, डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे, पैरामेडिकल स्टाफ नर्सेस भी हड़ताल पर हैं और अब तक कई नौज़ायदा बच्चे नौनिहाल फूल मुरझा चुके हैं। शहरियों ने रोड ब्लॉक किया हुआ और चिल्ड्रन अस्पताल की इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। एक साहब जिनकी बच्ची दाखिल है और उनकी बच्ची का इलाज नहीं हो रहा, आइए इनसे बात करते हैं। जी, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे 5 दिन हो गए यहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। मेरी पोती की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, डबल नमूने की शिकायत थी। मैं यहाँ पर लेकर आया, मगर एक बच्चा पिछले दिनों में 2 दिन पहले एक्सपायर हुआ। उस एक्सपायर होने की वजह से यहाँ हल्ला गुल्ला हुआ। डॉक्टरों का गैर इखलाकी रवैया है। अभी तक कई जो है ना बच्चे, मासूम बच्चे पड़े हुए हैं जो ऑक्सीजन के ऊपर पड़े हुए हैं। हो सकता है अब मजीद बच्चों की हलाकत का भी खदशा हो सकता है। जी, आपने सुना शहरी का कह रहा था कि बच्चे अस्पताल में पड़े हुए हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि खुदारा उनके छोटे छोटे नौनिहालों को जो है इलाज की सहूलत मुहैया की जाए ताकि वो बच्चे सेहतयाब हो सके। ये नौनिहाल उन वालिदैन का मुस्तकबिल है जो वालिदैन। मुल्तान से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। नारोवाल में ताला तोड़ गैंग सरगर्म होते हैं। रात के औकात में दुकानों के ताले तोड़कर लूट मार करना इस गैंग का मामूल बन चुका है, जिसके बायस ताजिर हजरात परेशानी में मुब्तला है। अपडेट करें आपको नारोवाल से, जहां ताला तोड़ गैंग सरगर्म हो चुका है। रात के औकात में दुकानों के ताले तोड़कर लूट मार करना गैंग का मामूल बन चुका है। इसी बारे में मजीद अपडेट देंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज मोहम्मद हुमायूं से। हुमायूं, तफसीलात दीजिएगा। जी बिल्कुल, ये थाना सदर का इलाका है, चंदोवाल गांव, जहां पर गुज़श्ता शब ताला तोड़ गैंग ने तकरीबन 8 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए नकदी, शैम्पू, सिगरेट्स, बोतलें और दूसरी चीजें लूटकर फरार हो गए हैं। अहले इलाका जो है वो इस ताला तोड़ गैंग की वजह से बहुत परेशान है, जबकि पिछले 1 माह के अंदर यहाँ पर एक बिजली की दुकान थी जहाँ पे तकरीबन 3 लाख रुपए का सामान इसी तरह पिछली दीवार तोड़ के भी चुराया गया था। हमारी इस सिलसिला में ऐसा जो थाना सदर से बात हुई, उन्होंने कहा कि रात को इस सिलसिले में गश्त बढ़ा दिया गया है और चोरों को ढूंढने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया मोहम्मद हुमा। कमात हवा में उड़ा दिए गए। पाबंदी के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में पतंगबाजी का सिलसिला जारी है। अहम खबर से आपको अपडेट करें गुजरावाला से, जहां पतंगबाजी पर पाबंदी लगाई गई, जिसके अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। इसी बारे में मजीद अपडेट देंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज राना आमिर से। राना आमिर, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, गुजरांवाला में जो है पुलिस की जानिब से पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया गया है, लेकिन वो अमली तौर पर ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। शहर भर में जो मनचले नौजवान हैं वो अपनी छतों पर चढ़कर पतंगे उड़ा रहे हैं और भौकाटा के नारे भी लगा रहे हैं। इसके बावजूद किसी भी थाने की पुलिस ने किसी किस्म का कोई क्रैकडाउन नहीं किया। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गुजरांवाला में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 3 से 4 अफराद जो है वो पतंग की डोर फिरने की वजह से जख्मी हुए थे, जिन्हें DHO मुंतकिल किया गया था। और उसके बाद जो जिले इंतजामिया और पुलिस की जानिब से सख्त तरीन एक्शन का ऐलान किया गया था, लेकिन अमली तौर पर हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसा किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा पुलिस की जानिब से। और जो मनचले नौजवान है वो सारा दिन पतंगे उड़ाते रहे हैं और दिन भर जो आसमान है वो रंग बिरंगी पतंगों से भरा रहा है, लेकिन पुलिस को किसी किस्म की कोई कार्रवाई की तौफीक नहीं हुई। जी, गुजरांवाला में भी पतंगबाजी पर पाबंदी आयद है, मगर इस पर अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया जा रहा। बहुत शुक्रिया राना आमिर। जंग के मोहल्ला गाजियाबाद में लगाया गया वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट कई माह से खराब होने के बायस इलाका मकीन परेशानी का शिकार हैं। शहर के गुंजानाबाद इलाका मोहल्ला गाजियाबाद में 5 साल कबल रोहड़ी क्लब जंग की जानिब से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया था, जिससे न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि राना कॉलोनी समेत इर्द गिर्द के कई इलाकों के लोग मुस्तफीद होते थे। गुज़िश्ता 6 माह से ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब है, यहाँ तक कि इसके नल भी उतर चुके हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं। इलाका मकीनों का ये कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट के खराब होने की वजह से उन्हें मुश्किलात दरपेश हैं। उनका ये कहना था कि जमीनी पानी पीने के काबिल नहीं है, लोग पेट और जल्दी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। लोग दर बदर ठोकरे खा रहे हैं जनाब पानी भरने के लिए। कभी वो जेल रोड पर जाते हैं, कभी वो TB हॉस्पिटल जाते हैं, वो बच्चे होते हैं, औरतें, उन्हें पानी भरने के लिए इतनी दुश्वारी हो रही है ना। 2 साल तो
कतल खराब बिल्कुल खराब होया गया क्योंकि ये नीवी जगह है स्कूल दी गटर बंद हो गए तो स्कूल दे विच पानी पौंदा रहा इस वजह तो थलवा पानी खराब हो गया। इलाका मकीनों का ये कहना था कि उन्होंने मुतादिद बार टीएमओ और डिप्टी कमिश्नर झंग को दरख्वास्तें दी मगर इंतजामिया की बेहिसी और खामोशी इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने आला हुक्काम से मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर फिल्ट्रेशन प्लांट को ठीक किया जाए ताकि उन्हें पीने का साफ पानी मुयस्सर आ सके। खुशाब के इलाके हडारी के मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत डेंगू से बचाव के लिए गंदे पानी के बड़े जौहर में मिट्टी की भराई का काम शुरू कर दिया है। बॉयज हाई स्कूल हडाली से मुल्हिका 3 एकड़ रकबे पर गंदे पानी का तालाब मच्छरों और मक्खियों की आमाशगाह बना हुआ है और वहां से उठने वाली बदबू और ताफुन के बायस शहरियों का गुजरना 2 बार हो चुका था। हडाली के मकीनों की इस्तदा पर हुकूमत की जानिब से इस गंदे जौहर की भराई के लिए फंड्स भी जारी हुए थे जो नामालूम वजूहात की बिना पर खर्च न हो सके। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत जौहर के खात्मे के लिए इस जौहर में मिट्टी दिलवाना शुरू कर दी। अरसे से हमारा पानी गंदगी का यहाँ पे खड़ा है और वज़ीर आला साहब ने इसके लिए ग्रांट भी दी थी और फिर उसके बाद इन्होंने कोई यहाँ पे तवज्जो नहीं दी। ग्राउंड की भर्ती करा रहे हैं, ये सब लोग हम अपनी मदद आपके तहत करा रहे हैं। ये इतने सालों से यहाँ हमारे गांव के एमपीए भी रहे और एमएनए भी रहे और हर किस्म की पोस्ट पे हमारे लोग यहाँ पे रहे, लेकिन उन्होंने ये पिछले 60 साल से इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। उनका ये कहना था कि वो अपने हलके के कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान की कारकर्दगी से मायूस हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि गंदे पानी के जौहर के खात्मे के बाद यहाँ खेलों के फरोग के लिए प्ले ग्राउंड बनाए जाएंगे। सरगोधा में वापडा का अनोखा कारनामा सामने आ गया। मेहनत कश के घर में जबरदस्ती बिजली का ट्रांसफार्मर लगा दिया गया जिस पर वो तहफुजात का शिकार है। सरगोदा के नवाही इलाके में एक मेहनत कश के घर पर वापडा ने जबरदस्ती ट्रांसफार्मर लगा दिया जिस पर अहले खाना तहफुजात का शिकार हैं। मेहनत कश नजर मोहम्मद का ये कहना है कि वापडा एहलकारों ने बिला इजाजत उनके घर में बगैर हिफाजती इकदामात और खंभों के दाखिली दरवाजे के साथ ट्रांसफार्मर नस्ब कर दिया जिसमें 11,000 वोल्ट की हैवी लाइन भी गुजारी गई हैं। मुतासरा शख्स का ये कहना था कि इस हवाले से बारहा वापडा के आला हुक्काम को मतला किया और दरखास्त भी की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। असि गरीब बंदे चुप कर गए। मेहनत कश ने हुकामे बाला से इस लापरवाही का नोटिस लेते हुए ट्रांसफार्मर उसके घर से बाहर नस्ब करने और जिम्मेदार वापडा हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया है। नाज़रीन, बर्रे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह रुकने आलम सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात मुल्तान में जारी हैं जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क से हजारों की तादाद में अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं जिनके लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। जनूबी एशिया के रूहानी पेशवा शेखुल इस्लाम हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के 703वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात शुरू हो चुकी हैं। उर्स की तकरीबात का आगाज सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने मज़ार मुबारक के गुस्ल और चादर पोशी से किया। इस मौका पर मुल्क की तरक्की, सलामती, खुशहाली और अमन के लिए भी दुआ की गई। उर्स में शिरकत के लिए कुर्ब व जुवार के ज़ायरीन के साथ साथ सिंध से आए हुए हजारों ज़ायरीन ने भी शिरकत की कि हम इन औलिया अल्लाह के कदमों में आएं और आकर के सबक हासिल करें। हाँ, साल में 2 मरतबा हम उर्स में आते हैं। हमारे सिंध से बुढ़े बुढ़े आते हैं। की तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी। इस दौरान खसूसी सेमिनार, महफिल नात और महफिल समा मुनक्किद हो रही हैं जिनमें मुल्क भर से आए हुए उलमाए किराम और मुशाइख इज़्ज़ाम खिताब करेंगे जबकि सना ख्वां अदिया नात पेश करेंगे। तकरीबात के आगाज में इज़हार ख्याल करते हुए सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि औलियाए किराम के मज़ार इल्म, सेहत, अमन और भाईचारे के फ़रोग़ का जरिया है। यहाँ हाज़िरी देने वाले नाकाम और नामुराद नहीं लौटते। शेखुल इस्लाम हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम ने
इल्म व अमल, सीरत और किरदार के पैकर बनकर लोगों को न सिर्फ दायरा इस्लाम में दाखिल किया बल्कि जनूबी एशिया में इस्लाम की हक्कानियत का बोलबाला भी किया। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ इजाज तरीन, वक्त न्यूज़, मुल्तान। और अब रुख करेंगे सूबा सिंध का। सखर में गुज़िश्ता रोज होने वाले तसादुम में गिरफ्तार 14 अफराद को अदालत में पेश किया गया, जिन्हें 10 रोजा जुडिशल रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज खोसो बरादरी के पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे पर पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन और गुल्लू बट की कार्रवाई के नतीजे में 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया। जेरे हिरासत अफराद को आज ATC कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 10 रोजा जुडिशल रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया, जबकि 10 से जायद पुलिस एहलकारों को ASP समेत मुअत्तल कर दिया गया। जैकबाबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों की जानिब से भत्ताखोरी और ज्यादतियों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाजी मुजाहरा किया। जैकबाबाद बाईपास पर ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाजी धरना दिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर ट्रक ड्राइवर्स का कहना था कि चेक पोस्ट पर सिंध बलूचिस्तान से आने और जाने वाले ट्रकों को रोककर जबरदस्ती डीजल और पेट्रोल निकाला जाता है, जिसकी रकम मालिकान ड्राइवर से वसूल करते हैं। खैरपुर की तहसील परियालों में कायम प्राइमरी स्कूल की हालत इंतहाई खस्ता है। इमारत न होने के बायस बच्चे खुले आसमान तले बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। खैरपुर की तहसील परियालों में कायम प्राइमरी स्कूल की इमारत नहीं है और न ही 4 दीवारी है। स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर और पीने का पानी तक दस्तयाब नहीं। स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा और तालिबात सख्त सर्दी में खुले आसमान तले बैठकर तालीम हासिल करने में मसरूफ हैं। असातिज़ा के मुताबिक स्कूल में 300 से ज़ायद तलबा और तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। और अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। कोहाट से अहम खबर है। कोहाट में 4 माह से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ महकमा सेहत के मुलाजमीन ने पोलियो मुहिम के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है और मुलाजमीन का कहना यह है कि उन्हें 4 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही। अपडेट करें आपको कोहाट से, जहां 4 माह से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ महकमा सेहत के मुलाजमीन ने पोलियो मुहिम के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। इसी बारे में अपडेट देंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज असद नौशाद से। असद, अपडेट कीजिएगा। जी, कोहाट महकमा हेल्थ और सरकारी अस्पतालों के पैरामेडिक्स का DHO ऑफिस के सामने शदीद एहतजाज किया और पोलियो मुहिम से बाइकाट का ऐलान कर दिया है। EPI स्टाफ को 4 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने शदीद नाराबाजी भी की है और उन्होंने कहा है कि जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं होते और तनख्वाहें जो 4 माह से बंद हैं अदा नहीं की जाती, वो पोलियो मुहिम का एहतजाज करते रहेंगे और कोई भी वर्कर काम नहीं करेगा। DHO आजम वजीर और डॉक्टर मोहब्बत के खिलाफ नाराबाजी भी कर रहे हैं और डॉक्टर मोहब्बत के जब तक मुतालिबात नहीं सुने जाते एहतजाज जारी रहेगा। असद, बहुत शुक्रिया। और अब कुछ खबरें होंगी बलोचिस्तान से। दुक्की में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन वारदातों में मतलूब 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके कब्जे से असलहा और माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 2 मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई के दौरान संगीन वारदातों में मतलूब 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और मनशियात भी बरामद कर ली। गिरफ्तार अफराद कुछ अरसे से 6 माह से मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पुलिस को मतलूब थे और उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारे जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद की मदद से दीगर अफराद को भी गिरफ्तार किया जाएगा। सोहबतपुर में बुनियादी मरकज़ी सेहत को ताला लगा दिया गया, जिसके बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। सोहबतपुर में बुनियादी मरकज़ी सेहत को ताला लगा दिया गया है। एम्बुलेंस की सहूलत भी मुयस्सर नहीं है, जिसके बायस मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात दरपेश हैं। दूर दराज से आने वाले मरीज भी ताला देखकर वापस मायूस लौट जाते हैं। ज़राए के मुताबिक अस्पताल में तैनात डॉक्टर समेत 15 के करीब अमला घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहा है, जबकि बुनियादी मरकज़ को अद्वियात और उनकी मॉनिटरिंग के लिए
लिए मौजूद PPHI ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। अहले इलाका का कहना है कि बुनियादी मरकज़ सेहत को फौरी खोला जाए और उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जाएं। इसके साथ ही कराची से खैबर तक के हवाले से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप वक्त न्यूज़ के साथ रहिए।